हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन बाय CEM जॉर्ज के लॉन्ग आंसर और एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट थिंग्स अकॉर्डिंग टू लूसी मेक वन सिविलाइज्ड। इंपॉर्टेंट है, लूसी के अनुसार कौन सी चीज़ें मनुष्य को सभ्य बनाती हैं। आंसर, इन द लेसन अ डायलॉग ऑन द सिविलाइजेशन लूसी ए लिटिल गर्ल थिंक्स दैट द पीपल हु वियर गुड क्लॉथ्स एंड यूज बसेस एंड कार्स आर सिविलाइज्ड। In her view, money makes people civilized because with their money they can buy all the things they like. She thinks that fashionable market also makes civilization. Lucy thinks that machines, trains, radio set, telephones and cinema houses to make a society civilized. In her view, people like Shakespeare are civilized because grown-up people praise them. Lucy feels that those who live in wonderful palaces like princes, those who wear costly dresses, those who use beautiful carpet, those who have very rich food and drinks, and those who have slaves about them are civilized people. This is Lucy's view of civilization, but she goes on changing her views as the lesson progresses. By and by, she accepts what CEM George tells her about civilization. सभ्यता पर एक संवाद नामक पाठ में लूसी नामक एक छोटी सी लड़की सोचती है कि वे लोग जो बढ़िया कपड़े पहनते हैं तथा बसों व कारों का उपयोग करते हैं सब होते हैं। उसके विचार से धन लोगों को सभ्य बनाता है, क्योंकि अपने धन के द्वारा वे अपनी पसंद की सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। वह सोचती है कि फैशन वाले बाज़ार भी सभ्यता को जन्म देते हैं। लूसी सोचती है कि मशीनें, रेलगाड़ियाँ, रेडियो, टेलीफोन और सिनेमा घरों भी समाज को सभ्य बनाते हैं। उनके विचार से शेक्सपियर जैसे लोग सभ्य होते हैं, क्योंकि वयस्क लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। लूसी महसूस करती है कि वे जो आश्चर्यजनक महलों में राजकुमारों के समान रहते हैं, वे जो मूल्यवान वस्त्रों को धारण करते हैं, वे जो सुंदर कालीनों का उपयोग करते हैं, वे जिनके पास बहुत बढ़िया खाना व पीना है, वे जिनके आसपास गुलाम होते हैं, सब लोग होते हैं। सभ्यता के बारे में लूसी का यही विचार है, किंतु जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता जाता है वह अपने विचार बदलती जाती है। धीरे धीरे उन विचारों को स्वीकार कर लेती है जो सभ्यता के बारे में CEM जॉर्ज बताते चलते हैं। क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू CEM जॉर्ज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए ट्रू सिविलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, CEM जॉर्ज के अनुसार सच्ची सभ्यता की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और व्हाट अकॉर्डिंग टू CEM जॉर्ज इज मीन्ड बाय बीइंग सिविलाइज्ड। CEM जॉर्ज के अनुसार सभ्य होने का क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट है। Answer, like the little girl Lucy, many people think that wearing nice clothes, riding about in buses, cars and trains, buying things from big market, using machines, having radio set and telephones, going to the cinemas make people civilized. But CEM George does not agree with these people. He does not believe in these requirement of civilization. In his opinion, the riches, power, possession of grand things and living in luxury do not make civilization. According to CEM George, thinking new thoughts is the sign of being civilized. People should think new things with all freedom of thinking. CEM George wants that a free thinker must be given security against danger. He must also be given free time to help his thinking in a pleasant social environment. CEM George thinks that a peaceful and good social environment is a necessary requirement for making people civilized. At last, CEM George concludes that the real meaning of civilization is making beautiful things, thinking freely and thinking new things, obedience to rules and being good to others. In other words, the essential requirements of civilization are the development of art, science, philosophy, political justice and ethics. एक छोटी लड़की लूसी के समान बहुत से लोग सोचते हैं कि वे लोग जो बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बसों
कारों और रेलों में सवारी करते हैं, बड़े बड़े बाज़ारों से सामान खरीदते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं, रेडियो व टेलीफोन रखते हैं, सिनेमा जाते हैं। ऐसे लोग सब होते हैं, किंतु CEM जॉर्ज इन लोगों से सहमत नहीं हैं। वे सभ्यता की इस पुकार में विश्वास नहीं करते। उनकी राय में धन, शक्ति, शानदार वस्तुओं का आधिपत्य तथा वैभवशाली शक्ति के रूप में जीवन यापन से सभ्यता का निर्माण नहीं होता। CEM जॉर्ज के अनुसार नए विचारों का सोचना सभ्य होने का लक्षण है। सोचने विचारने की पूरी आज़ादी के साथ लोगों को नई नई बातें सोचनी चाहिए। CEM जॉर्ज चाहते हैं कि एक स्वतंत्र विचारक को खतरे के खिलाफ सुरक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। एक सुखद सामाजिक वातावरण में उसकी विचारशीलता की सफलता के लिए उसे खाली समय भी दिया जाना चाहिए। CEM जॉर्ज सोचते हैं कि लोगों को सभ्य बनाने के लिए एक शांत, अच्छे सामाजिक वातावरण का होना जरूरी होता है। अंत में CEM जॉर्ज निष्कर्ष निकालते हैं कि सभ्यता का सही अर्थ है सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना, आज़ादी के साथ सोचना और नई बातें सोचना, नियमों का पालन करना और दूसरों के लिए भला होना। दूसरे शब्दों में सभ्यता के लिए आवश्यक है कला, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, न्याय और नैतिकता का विकास। क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर समवन टू बी एबल टू थिंक फ्रीली? किसी व्यक्ति के स्वतंत्रतापूर्वक सोचने के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? और व्हाट आर द 3 थिंग्स नेसेसरी टू फ्री थिंकिंग? स्वतंत्र चिंतन के लिए कौन कौन सी 3 बातें आवश्यक हैं, इम्पोर्टेंट है? आंसर, इन द ओपिनियन ऑफ मिस्टर CEM जॉर्ज, following 3 things are necessary to free thinking. First, security. A free thinker is disliked by the priest and the neighbors. Thus, there may be occasions of his being robbed or murdered by the wicked people. This sense of insecurity would never give the man peace for free thinking and free actions. Therefore, it is necessary to give security to a man if you want him to think freely. B. Leisure. The other condition raised by Professor George is of leisure. The writer says that a free thinker must have enough free time for his thinking. A buried mind would not get new idea. A man has 2 more worries to disturb his peace: to earn money to buy food and to earn money to buy clothes. If a man is relieved of these 2 worries, he would get enough vacant hour for free thinking. Therefore, the man should be provided with free time, leisure for free thinking. C. Society. The last necessary condition is that a free thinker should not be hated by society. There should be people around him to listen, discuss and pick up the new idea given by him. If a man is kept in loneliness, he would never be able to help the society with his new thoughts. श्री CEM जॉर्ज के मत के अनुसार निम्नलिखित 3 बातें स्वतंत्र सोच विचार के लिए आवश्यक हैं। फर्स्ट, सुरक्षा। एक स्वतंत्र विचारक को पुजारी व पड़ोसी नापसंद करते हैं, इसलिए ऐसे अवसर आ सकते हैं कि दुष्ट लोगों के द्वारा उसे लूट लिया या कत्ल कर दिया जाए। असुरक्षा की ऐसी भावना इस आदमी को कभी शांति नहीं मिलने देती ताकि वह स्वतंत्र चिंतन व स्वतंत्र कार्यकलाप कर सके। इसलिए यदि तुम उस आदमी से स्वतंत्र चिंतन करवाना चाहते हो तो उसे सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। बी. फुर्सत। प्रोफेसर जॉर्ज के द्वारा प्रस्तुत दूसरी शर्त फुर्सत अवकाश भी की है। लेखक कहता है कि एक स्वतंत्र विचारक के पास सोच विचार के लिए पर्याप्त फुर्सत का समय होना जरूरी है। एक चिंतातुर मस्तिष्क नए विचारों को ग्रहण नहीं करेगा। एक आदमी के पास उसकी शांति भंग करने के लिए 2 और चिंताएं होती हैं, जैसे भोजन खरीदने के लिए धन कमाना और वस्त्र खरीदने के लिए धन कमाना। यदि कोई आदमी इन 2 चिंताओं से छुटकारा पा ले तो उसे स्वतंत्र चिंतन के लिए पर्याप्त खाली समय मिल सकेगा। इसलिए उस आदमी के पास स्वतंत्र चिंतन के लिए फुर्सत होनी चाहिए। सी. समाज। अंतिम आवश्यक शर्त यह है कि स्वतंत्र विचारक से समाज को घृणा नहीं करनी चाहिए। उसके द्वारा दिए गए नए विचारों को सुनने, उस पर तर्क करने और उन्हें अपनाने के लिए लोगों को उसके आसपास रहना चाहिए। यदि एक आदमी को एकांत में रखा जाए तो वह अपने नए विचारों के द्वारा समाज की सहायता करने
योग्य कभी नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट आर द थिंग्स दैट डू नॉट काउंट मच फॉर बीइंग सिविलाइज्ड? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनका सभ्य बनने के लिए कोई महत्व नहीं होता? आंसर, देयर आर सर्टेन स्प्लेंडेड थिंग्स, सच थिंग्स impress us but they are not useful in making us civilized. Such things are proper clothes, buses, cars, machines, trains, wireless and telephones and cinemas. The caliph and princess in the Arabian Night had splendid things, palaces and silks and satins and jewels, scents, gorgeous clothes, wonderful carpets, lovely things to eat and drink, and slaves in attendance upon them. The lesson further mention trickle, trophies, catapults, tennis, request, etc. All these things are in use in a civilized society. Even then, they are not much important for being civilized. People who are without these things are also civilized. So the above listed things are the items which do not count much for being civilized. कुछ चीज़ें बहुत शानदार होती हैं, ऐसी चीज़ें हमको प्रभावित तो करती हैं किंतु वे हमें सब बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ऐसी वस्तुएं अच्छे वस्त्र, बसें, मोटर कारें, मशीनें, रेल, बेतार का तार तथा टेलीफोन और सिनेमा। अरेबियन नाइट के खलीफा व शहजादों के पास शानदार चीज़ें, महल और रेशम व सौटन व जवाहरात, इत्र, भव्य वस्त्र, आश्चर्यजनक गलीचे, खाने पीने की प्यारी प्यारी वस्तुओं और उनकी स्वयं की सेवा के लिए गुलाम होते हैं। पाठ में आगे ट्रिएक्किल, ट्रॉफी, गुलेल, टेनिस के बल्ले आदि की चर्चा है। ये सारी वस्तुएं एक सभ्य समाज में काम में लाई जाती हैं, फिर भी सभ्य बनने के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। लोग जिनके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं वे भी सभ्य होते हैं। इस प्रकार ऊपर वाली वस्तुओं की सूची में वे वस्तुएं हैं जो सभ्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। क्वेश्चन, वाई डू पीपल हेजिटेट टू थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम अदर? व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर समवन टू बी एबल टू थिंक फ्रीली? दूसरे लोगों से अलग तरीके से सोचने व काम करने से लोग हिचकते क्यों हैं? यदि कोई स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने के योग्य बनना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? आंसर, न्यू थॉट्स आर ऑफन डिसलाइक्ड बाय द प्रीस्ट बिकॉज द प्रीस्ट आर जनरली conservative. The new idea seems to hurt their old traditions, so the priest cast the free thinkers. Begged the priest propagate that the free thoughts go against the God, so the thinker will be either punished by gods or should be punished by the public. Thus the free thinker have to live along the danger of being robbed or murdered, so people have to avoid free thinking. The writer therefore recommends that the free thinkers should be provided with security, leisure and society to propagate their view among the people. In the absence of these three conditions, there will be no free thinking, and without free thinking, there would not be any progress in civilization. पुजारियों को नए विचार ज़्यादातर नापसंद होते हैं क्योंकि पुजारी लोग साधारणतया परंपरागत विचारों के लोग होते हैं। लगता है कि ये नए विचारों से उनकी पुरानी परंपराओं को चोट पहुंचती है, इसलिए ये पुजारी लोग स्वतंत्र विचारकों को धर्म का दुश्मन कहने लगते हैं। पुजारी लोग प्रचार करते हैं कि स्वतंत्र विचार देवताओं का विरोध करते हैं, इसलिए इन विचारकों को या तो देवताओं के द्वारा दंडित किया जाएगा या उन्हें जनता के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इसलिए स्वतंत्र विचारकों को या तो लूट लिए जाने के या फिर कत्ल कर दिए जाने के खतरे के बीच में जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए लोगों को स्वतंत्र सोच विचार से बचना पड़ जाता है। यह लेखक इसलिए सिफारिश करता है कि स्वतंत्र विचारकों को सुरक्षा, अवकाश के समय और समाज की प्राप्त कराई जानी चाहिए ताकि वे अपने विचारों को जनता में प्रचारित कर सकें। इन तीन सुविधाओं के अभाव में स्वतंत्र चिंतन संभव नहीं होगा और स्वतंत्र चिंतन के अभाव में सभ्यता में कोई प्रगति नहीं होगी। टू हैव समथिंग टू डू, कुछ करना पड़ता है। वी शैल हैव समथिंग टू डू फॉर दिस पुअर एंड अनएम्प्लॉयड मैन,
CREDIT credit means साख गुण प्रशंसा. The credit of scoring the highest number of centuries in Test cricket goes to Sunil Gavaskar. Getting warmer सही उत्तर के निकट आना. I studied the problem for 2 hours and now I feel that I am getting warmer to find the right solution. Make a great fuss about अनावश्यक महत्व देना. Gorgeous means शानदार यूज करना है. मच बेटर ऑफ मीन्स जीतना परिश्रम से सफल होना. सब्सटीट्यूट मीन्स विकल्प. गॉट टायर्ड ऑफ मीन्स ऊब जाना. इनॉर्मस मीन्स विशालकाय. सैवेज मीन्स जंगली असभ्य बर्बर व्यक्ति. लीजर मीन्स फुर्सत. गेट इनटू अ रो मीन्स झगड़ा मोल लेना. OUGHT ऑट मीन्स चाहिए. यू ऑट टू हैव परचेज्ड ए न्यू डिक्शनरी फॉर योर ब्रदर. AUGHT ऑट मीन्स सब कुछ पूरी तरह से. शी माइट बी डेड फॉर ऑट आई केयर. SOM मीन्स सम मीन्स कुछ. आई हैव टू परचेज सम मैंगोज फॉर माई मदर. SUM सम मीन्स जोड़ रुपए पैसे. द सम ऑफ 4 and 6 is 10. PEOPLE पीपल मीन्स लोग जनता. एट लीस्ट 10,000 पीपल अटेंडेड द मीटिंग. PUPIL पीपल मीन्स छात्र ऑब्लिक छात्रा. देयर वेयर ओनली 10 pupils present in the class today. KNOW नो मीन्स जानना. I do not know the French language so I cannot read this letter. NO नो मीन्स नहीं. The glass is empty. It has no milk in it. READ read means पढ़ा. I have read your letter this morning only. RED red means लाल. The color of blood is always red. WAIT wait means प्रतीक्षा करना. WEIGHT wait means वजन. ALTOGETHER altogether means बिल्कुल. ALLTOGETHER altogether means सब लोग एक साथ. Expect means आशा करना. ACCEPT accept means स्वीकार करना. SAW सा means देखा. SOW सो means बोना. WHETHER weather means या तो यह या वह. WEATHER weather means मौसम. PERSON पर्सन मीन्स व्यक्ति. PARSON पार्सन मीन्स ईसाई पुजारी. STEAL स्टील मीन्स चोरी करना. STEEL स्टील मीन्स इस्पात फौलाद. OFF ऑफ मीन्स अलग होना. OF ऑफ मीन्स काकी के. TOO मीन्स भी बहुत अधिक. TO2 मीन्स दिशा बताने वाला प्रीपोजिशन. MAIN मैन मीन्स मुख्य. MANE मैन मीन्स घोड़े या सिंह की गर्दन के बाल. सिनोनिम्स ट्राई का अटेम्प्ट होगा. सपोज का इमेजाइन होगा. शॉर्ट का काइंड होगा. सावेज का बारबेरस होगा. लीजर का फ्री होगा. रिच का वेल्दी. स्प्लेंडेड का मैग्निफिसेंट. बिगिन का स्टार्ट. पावरफुल का माइटी. श्योर का इमिनेंट. हैपन का आकार. बिग्ड का रिलीजियस. ऑप्ट का ऑफन का फ्रीक्वेंटली. नेसेसरी का एसेंशियल. रीजन का कॉज. डिस्कवर का सर्च. एंटोनिम्स सिविलाइज्ड का अनसिविलाइज्ड. बाई का सेल. क्रेडिट का डिसक्रेडिट. लाइड का डिसलाइक्ड. एनीबडी का नोबडी. ब्यूटीफुल का अगली. स्पेशल का कॉमन. ईवर का नेवर. सावेज का कल्चर्ड. फ्री का अनटाइड. यूजुअली का रेयरली. डिफ़िकल्ट का ईजी. इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट. नेसेसरी का अननेसेसरी. पार्टली का कम्प्लीटली. ऑबे का डिसऑबे. फर्स्ट का लास्ट. लीजर मीन्स फ्री टाइम. सपोज मीन्स थिंक. शॉर्ट का काइंड. स्प्लेंडेड मीन्स ग्रैंड. एक्सपेक्ट मीन्स होप. इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग. पावरफुल मीन्स स्ट्रॉन्ग. अ बिट मीन्स अ लिटिल. एथिक्स मीन्स भले बुरे का विज्ञान और ज्ञान. आवर एथिक्स डज नॉट अलाउ कम्युनल इनटॉलरेंस. सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता. अ बिट मीन्स एक टुकड़ा. सॉर्ट ऑफ थिंग्स मीन्स किसी प्रकार की चीज़ें. ऑट टू बी मीन्स होना चाहिए. प्राउड ऑफ मीन्स गर्व है. गेटिंग इनटू द ट्रेन मीन्स रेल में प्रवेश करना. ग्रोन अप पीपल मीन्स वयस्क लोग. अ साइन ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता का लक्षण. काउंट मीन्स महत्वपूर्ण होना. स्प्लेंडेड मीन्स आश्चर्यजनक भव्य. टू वेट ऑन मीन्स सेवा में खड़े रहना. टू गेट सिक मीन्स ऊब जाना. लेट ऑफ मीन्स चले जाने देना छोड़ देना.
टू इनहेरिट मीन्स उत्तराधिकार में पाना, लग्जरी मीन्स वैभव, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, टू डेंजरस मीन्स बहुत खतरनाक, नेबर मीन्स पड़ोसी, लॉट्स ऑफ पीपल मीन्स बहुत लोग, डिस्कवर मीन्स खोजना, कीपिंग द रूल्स मीन्स कानून मानना, टू गो ऑन विद मीन्स किसी काम को करते रहना। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।